Om Shanti. We'll begin with a very short meditation. A point of light. A spark of luminosity. I am feeling myself. A radiant light. Sitting in the middle of the forehead. I am a spiritual being. I see divine rays going out from me throughout my body. My whole body has become light. I am a supremely pure soul. Now, I drop this body and go above this earthly existence. I am an angel of light. I see a huge room, a very dark room, and this room is my subconscious mind. I am holding a torch in my hand. And I am entering this room. My torch is shining and the light is falling on some particular area, some corner. Oh, what is this? What feelings are these? What emotions are these? What desires? What nature? What sanskars? I am discovering so many new things.
I am an angel of light. I am moving in this room, carrying the torch of awareness, scanning my own subconscious mind. Oh, which expectation is this lying in one corner? What passions? I see somewhere insecurity, some fear. I was never knowing that all these things were in me. I thought I got rid of irritation and anger. I thought all these feelings of revenge, jealousy, pride have departed. But I see them there. I am moving across this huge room. Gradually, the light of my torch is increasing. Gradually, my own light is increasing. And I see these suppressed, hidden feelings, unnatural emotions. They all are disappearing. A divine light is enveloping my being. All light. Everything is so clear. And these are some of the things which were obstacles in my spiritual path. Just their knowledge and they are disappearing. How long I was unaware of them. And today, my entire being is enlightened. Rekindling of consciousness. Divine light of purity. This entire room is filled with positive, divine vibrations. All darkness is gone. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. All my thoughts are purified. The storehouse of the subconscious is totally free of all darkness, all dirt. A divine feeling of sublime nature. I am a point of light.
a sudden sense of lightness. This was the journey within myself. Complete catharsis, complete purgation, complete cleansing. Nothing is hidden now. A sense of lightness. All burden is gone. I am a double light angel. Free from vices, free from negativity, free from guilt consciousness. I am supremely pure soul. My whole being is purified. I am at peace with myself and with the whole world. Om Shanti. Before I begin the next session, again I am coming to the same diagram. This is conscious mind. This is subconscious or unconscious. This is collective conscious. This is cosmic conscious. A lot of things have been spoken about conscious mind and subconscious mind. There's one more level, which is known as collective consciousness. What is this collective consciousness? You must have heard about the term universal mind. So they say there's no one mind, there's the universal mind. All minds are connected. Or there is just one mind. When consciousness operates at a very subtle level, you will find that all are vibrating in the same frequencies. Only thing is that most of the time two minds remain detached. But when they get attached, they start understanding each other. A mother is sitting here in India and son is in America. He meets with an accident, suddenly she understands that something has happened to my son. You must have seen Indian history, Rajput's family. Husband has gone to war and somebody stabs him there in the battlefield and suddenly the plate falls down or something happens to the wife. All those events. What are all those? This is the telepathic communication between two souls. So, there is something, a level where you enter, which is known as collective consciousness, where you start getting connected with the whole universe. You feel this is the whole world, but you are not just an isolated person. You are already connected with everybody. And that one portion of the mind remains always connected, but remains untapped. You are not aware. Imagine a person who owns a 7-story building. Okay? एक आदमी है जो 7 मंजिला घर में रहता है और वो उसको पता ही नहीं 6 मंजिलों के बारे में.
सारी उम्र वो एक ही मंजिल पे बिता देता है, चेतन मन में। उसको पता ही नहीं कि ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ है। उसे ये भी नहीं पता कि अगर मैं नीचे जाऊं तो ऊपर के मार्ग भी खुलेंगे। उसे ये पता ही नहीं। बस एक ही मंजिल पे सोचता है, यही मेरा घर है बस। कितना अच्छा होता यदि उसे सारी मंजिलों का पता चल जाए। कितना अच्छा होता कि उसे ये भी पता चल जाए कि चेतन के नीचे भी कुछ है, अचेतन, अवचेतन। उसे ये भी पता चल जाए कि यहाँ पर तो इतनी सारी चीजें, सारा ट्रेजर है, सारा खजाना यहाँ पर है। कितना अच्छा होता कि इससे भी नीचे और वो उतरे। और ये जैसे जैसे व्यक्ति नीचे उतरते जाता है, अपने आप नीचे के लेवल होते जाते हैं। पर ये सारे सब चीजों के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। मौन और एकांत। बिना मौन और एकांत के इन तलों पर नहीं उतरा जा सकता है। कोई कितना भी भाषण करे, कितना भी भाषण सुने, कितना भी लिखे, कितने भी सेवाएं करे, ये सब एक तरफ। ये जो है ये साधना का मार्ग है, जिसमें एक योगी निकल पड़ता है अपने ही अचेतन के घर में। क्योंकि उसे ऊपर जाना है, पेड़ को ऊपर जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। अध्यात्म में सिद्धियां चाहिए तो साधना नीचे की ओर जाती है, नीचे उतरना पड़ेगा। ये चेतन से अचेतन, अवचेतन, अवचेतन से समष्टि चेतन, जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये लेवल है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का लेवल। दो शब्द हैं, क्लायर ऑडियंस एंड क्लायर वॉइस। क्लायर ऑडियंस अर्थात दूर श्रवण, क्लायर वॉयंस दूर ध्वनि, दूरदर्शन और दूर श्रवण। हम यहाँ बैठे हैं, बाजू के कमरे में क्या हो रहा है क्या ये जाना जा सकता है? हम यहाँ बैठे हैं, दूर कहीं कुछ हो रहा है देखा जा सकता है? टेलीपैथी कहती है हाँ। क्लायर ऑडियंस भी संभव है और क्लायर वॉइस भी संभव है। प्रैक्टिस। इट इज नॉट दैट ओनली दोज सेंट्स ऑफ द योर knew this technique. Even by practice we all can do that. And practice starts with एकांत में कहीं बैठो, आंख बंद करो और जितनी आवाजें हैं सारी आवाजों को सुनने का प्रयत्न करो, क्या आवाजें आ रही है। और फिर धीरे धीरे इतना सूक्ष्म चले जाओ, इतना सूक्ष्म चले जाओ कि वो 15 मिनट या आधा घंटे एक भी आवाज मिस ना हो। एकांत में, प्रकृति के सानिध्य में, कहीं निसर्ग में, पंछियों की चहचहाट, कोई गाड़ी बीच में जा रही है, सारी आवाजें सुनना। धीरे धीरे व्यक्ति यहाँ एंटर करता है। यहाँ पे उसे बहुत सारे दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जो कभी वर्णन भी नहीं किए जा सकते। उसे बहुत सारी चीजें पता चलने लगती है क्या होने वाला है। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस। एक होता है 5 इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, एक है छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन। पहले ही पता चल जाना क्या होने वाला है। ये आज होने वाला है। अव्यक्त मुरली है 69 की, दीदी से मुलाकात। एक समय आएगा जब आप और ड्रामा साथ साथ चलेंगे। जो आप सोचेंगे वही ड्रामा में होगा। जब जो आप अभी कहते हो कि जो होगा वो ड्रामानुसार हो रहा है, एक समय आएगा जब आप कहोगे वही ड्रामा में होगा। संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलने लगेंगे। ये सिद्धियां है साधना की, योगी की सिद्धियां है। योगी जानने लगेगा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है। पहले से ही आइडियाज आ जाएगी, क्योंकि इन वन वे द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड, ऑल इवेंट्स आर कनेक्टेड। सब कुछ उसको धीरे धीरे पता चलेगा, जबकि संसार के लोगों को भी पता चलता है। प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इसकी गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। दे गिव अप एवरीथिंग, सबसे कनेक्शन तोड़ देते हैं। संसार में कुछ लोग भी ऐसा करते हैं। AR रहमान का बीच में इंटरव्यू था। What he had told a very beautiful thing. He said, whenever I have to compose a new music or song, I enter into deep silence.
मुझे फिर कुछ लेना देना नहीं है, ना गीत बन जाएगा, फिर उसकी पब्लिसिटी होगी, उसकी प्रेज होगी, मेडल मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, फिल्म फेयर मिलेगा, ये नथिंग. आई जस्ट एम्प्टी माई माइंड ऑफ एवरीथिंग एंड आई एंटर इनटू द फेज ऑफ थॉटलेसनेस. वहां जाता हूं और वहां से कुछ तो निकलता है नया, because he is somewhere entering for fractions of second maybe into this space of collective consciousness. And all the real discoveries happen here. इस किताब में you will read there is an example given of Archimedes. Archimedes को राजा ने कहा था कि जाओ ये बताओ, ये किसी ने गहना लेके दिया है, इस गहने में सोना कितना है और हाथ कितनी है, बाबा की भाषा में चांदी जो भी है, एलॉय कितना है. तो वो कितना दिन तक सोचते रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है. एक दिन अपने बाथ टब में बैठ के नहा रहा होता है और अचानक उसको आ जाता है, स्ट्राइक होता है, ये है. और वैसे ही नेकेड ही स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द किंगडम. यूरिका. Archimedes. In the similar manner, this same your course book has given example of one more scientist, Kekuli. Kekuli had proposed the benzene ring. बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है कार्बन का, वो उसने दिया. वो उसको ड्रीम में दिखा था, ऐसा सो रहा था, हाफ ड्रीम, दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं. एंड सडनली अंडरस्टैंड. सो दीज सम मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें कुछ वो दिखाई देने लगता है जो नॉर्मली नहीं दिखाई देता है. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है यहाँ पे. इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिक्स्थ सेंस, नई चीजें व्यक्ति को पता चलने लगती है. तो दिस इज दैट लेवल वेयर यू गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल माइंड. You get connected with everyone, all of a sudden, and you start understanding. Only thing is that just as this mother is sitting in India, has a very strong link with that child. That's why she could understand. If the similar link can be established with each and every soul, you will start understanding everything which is happening in the universe. संपूर्ण समस्त सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, वो हमारे ऋषि मुनि एक ही स्थान पर बैठे बैठे सब जान लेते थे. कहाँ से, कैसे? क्योंकि they enter into the deeper level of mind. क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ जुड़ा हुआ है. और एक तीसरा और एक लेवल है, cosmic consciousness. I have a question. Can I? Yeah. जब बाबा ने कहते हैं क्या हमको आत्माओं की आवाज सुनाई देती है? It is at this level you hear. बिकॉज वेन यू आर दिस लेवल कहाँ से सुनाई है? यहाँ तो हमको कुछ नहीं सुनाई आता है. यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ही मन की आवाजें गूंज रही है, हमारे ही दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जन्म जन्म के जो भी संस्कार है, यहाँ पे आवाज हो रहे. आप यू आर एंटरिंग इनटू, सी देयर आर नो सच सेपरेट पार्टीशंस. आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम इट इज ड्रॉन. इट इज नथिंग लाइक दैट. बट द मोर यू एंटर इनटू साइलेंस, डीपर डीपर डीपर, यहाँ की तो आपने छोड़ ही दिया, यहाँ के दुख दर्द पीड़ा, यहाँ से आप बाहर निकल चुके हैं. ये संघर्ष यहाँ खत्म हुआ, इससे भी आप नीचे जा रहे हो, यहाँ पहुंच रहे हो. यहाँ जाने के बाद फिर आपको बहुत सारी चीजें होने लगती. यू स्टार्ट क्लायर ऑडियंस एंड क्लायर वॉइस. ये सिद्धियां है इस योगी की. ये उसको पता चलता है, या सुनाई भी देता है, या फिर दिखाई भी देता है. दिव्य दृष्टि, व्हाट दैट संजय गॉट इन महाभारत. यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एंड दिस इज नॉट बी जस्ट एन एबनॉर्मल थिंग. इट विल, इट हैपेंस. देयर इज वन मोर लेवल, लास्ट, then we'll come to discussion of the topic, cosmic consciousness. एक है क्रिएशन, एक दूसरा शब्द है प्री क्रिएशन. सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहां, किसने छिपा था. भारत एक खोज का गीत. अंतरिक्ष में क्या था, कौन था, वही जानता या नहीं भी जानता. नारदीय सूक्त. या जानता या नहीं भी जानता. Who is that? What is that? Everything beyond, even beyond the creation. What is it? What is it? What is it? So, cosmic consciousness is something is known as Prakriti, but not the Prakriti what you understand by Prakriti. It is pre-creation. Pre-creation. संसार में अलग अलग लोग
अलग अलग जातियों, सबने संसार का ये जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है इसकी थियरीज दी है, सभी ने दी है। ठीक है, ये संसार कैसे निर्माण हुआ है, ये वो तल है कि जो सृष्टि है, एक है कॉस्मिक, सारे सृष्टि में जो है, एक है उसके भी परे क्या था। दो दिस इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन ज्ञान, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस लेवल इज द प्री क्रिएशन लेवल। सृष्टि के भी पहले क्या था, तो ये है वो तल, सबसे डीपेस्ट तल है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक उदाहरण कि यहाँ के लोगों ने क्रिश्चियन, किसी ने बिग बैंग थियरी निकाली सृष्टि की उत्पत्ति की, ठीक है, किसी ने दूसरी एक थियरी निकाली। इंडियन फिलॉसफी में चले जाओ तो यहाँ पर बहुत बड़ी मनु अवतार, मत्स्य अवतार, विष्णु का जो दिखाया है सबसे प्रथम अवतार, दशम अवतार में मत्स्य अवतार। वो बाढ़ आती है तो विष्णु मत्स्य बनकर आता है, ठीक है, भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, आ रहे हैं, और फिर वो एक एक जाति का सहारा है, मनु अवतार, मनु को लेके फिर नई सृष्टि चालू होती है। दिस इज गिवन इन स्क्रिप्चर्स, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ओके, वन गो टू क्रिश्चियनिटी, आर्क ऑफ नोआ। Ark of Noah. Noah was told by God. Noah is considered as one of the prophets in Islam, not in Christianity. In Christianity, he is just a person, a messenger. In Noah, तो नोआ के आर्क, नोआ यहाँ पे भविष्यवाणी होती है कि सृष्टि बहुत खराब हो गई है, 40 दिन तक बारिश होगी, तो सारे एक प्राणी आ जाए। So can you see these people were unrelated. Indian here, now some of the Adivasis, Aboriginals, they also propose such theories कि बहुत पहले ऐसी बारिश हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। मोस्ट ऑफ द थियरीज ऑफ क्रिएशन दे आर लिंक्ड। ये सब कहाँ क्यों बनाई है सब लोगों ने, कहाँ से बनाई ये सारी थियरी? प्रोबेबली समवेयर ऑल द सोल्स दे नो ऑफ दिस, some idea is there, and as per our knowledge, ये जो है कॉन्सेप्ट हमारा 5000 साल का, और उसके बीच में जो द्वापर है जहां से चालू हो रहा है, यहां पर एक विनाश हुआ है। ये सारी वहां की मेमोरीज है इनके पास, दीज मेमोरीज ऑफ त्रेता एंड द्वापर के शुरुआत का जो पीरियड है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पीरियड। इसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ हुई है। यहाँ पे देवताओं ने कोई पाप नहीं किए कि उनका विनाश हो, सारे देवता बच गए, परंतु वो जो उनके महल वो सब टूट फूट गया, मूल्यों में आता है। तो ये जो मेमोरीज है ना, दिस इज स्टोर्ड हियर इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसलिए भले दुनिया की अलग अलग जाति के लोग अलग अलग स्थानों पर है, पर उनकी जो क्रिएशन की थियरीज है दे आर समवॉट सिमिलर। फ्रॉम वेयर, बिकॉज समवेयर इज स्टोर्ड। ये क्यों 2012 जो मूवी थी, अब ये डायरेक्टर को कहां से सूझा कि ये मूवी बनाई जाए? जो भी मूवीज बनी है डिस्ट्रक्शन पे, सारी मायन फिलॉसफी और व्हाटएवर मूवीज और दिस थिंग व्हाटएवर भविष्यवाणी एंड नॉस्ट्राडामस एंड ऑल दिस, ये आए कहां से? जरूर सारी आत्माओं ने अनुभव किया है कहीं ना कहीं। देवकुल की ही आत्माएं, उनमें ये संस्कार है, उन्होंने देखा है, एंड दैट इज स्टोर्ड इज सो डीप, एंड नाउ इट इज कमिंग हियर एंड दे आर मेकिंग मूवीज आउट ऑफ दैट। नहीं तो कैसा क्यों बनाएगा कोई? डिस्ट्रक्शन की मूवीज, वोल्केनोस पर मूवीज, फ्लड्स पर मूवीज बना रहे हैं। वैसे फ्लड की बस इतना फ्लड आ रहा है, फ्लड आ रहा है, फ्लड, सब सारी सृष्टि डूब रही है उसमें। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? सम मेमोरीज आर देयर, सो दैट इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच इज नोन एज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। प्री क्रिएशन, इवन क्रिएशन एंड प्री क्रिएशन, बना कैसा, उसकी सारी स्मृतियां, वेरी वेरी डीप लेवल ऑफ चेतना। Okay, so these are some of the different levels. Now our next topic is about cardiovascular disease. Do you want me to describe about pathophysiology of cardiovascular disease? Are you interested? Symptoms, signs, and this and that, and theories. Rather than I would like, I would be more interested in talking about relation of stress and the counseling part of that. Okay. One more thing, every one of you who is going to become a spiritual counselor must read one book. Please write down the name of the book. Everybody. Without understanding that book. Excuse me, don't tell me.
Tell them now. Okay. Why? Detach your mind. Give some comments. No anxiety to know things. You are always content. Keep your eyes open. Feel the inner awareness. Feel the light. Feel the sweetness. Feel the contentment. Feel the bliss. You don't need anything in the world. You are always content. Now we'll start using our mind. Dr. Joseph Murphy, The Power of Subconscious Mind. It's available in Hindi as well as English. Originally in English, Avchetan Man Ki Shakti. This author has done a lot of research and a lot of chapters are devoted to diseases and their treatment. Drugless therapy. Just by entering into the subconscious mind of the patients. What all things you can see, what all things you can happen, what are the ancient techniques of healing, what are the different techniques of healing, how actually healing is taking place, why somebody is going to some saint and some healing is occurring, why somebody is going to some mosque or some temple or some sacred place and why healing is occurring. What is the scientific concept of healing? He is describing everything in great detail and is probably the best book on subconscious mind. Joseph Murphy. Everywhere. You can get it, any airport, any railway station, any bookstall. It is soft copy. I will have to search. You can distribute to others. You can distribute to others if you have soft copy. But I don't advise you to have soft copy. I advise you. Yeah, somebody has having in the audience. He will give you. But I want you to have a hard copy of it. Because it is not for just reading once and giving away. It is a reference book. Read. You have to drink it rather, sip by sip. Very slowly. Read one paragraph and think. Many years back, Suraj Bhai had read this book. After that he started all his experiments. Whatever experiments. Bhaiji had started all the experiments after this book. Because everything, water and everything, like how the mind affects things. Where the healing exactly is happening. What are the subtle links in healing and why healing is not occurring. Two patients getting admitted, one is getting okay, another is not getting okay, same treatment, same problem. Why? That's the problem. So, many answers to this. This is definitely will help you in your spiritual counseling. So,
Start reading one by one paragraph, one page a day. Don't be in a hurry to finish this book. This is not a book to be finished. You can get a complete audio on YouTube. Complete audio of this book, English audio. Even 4 or 5 chapters Hindi audio is available. Audio books are available. But I advise you still to have it with you. Hindi copy as well as English copy. Both. Okay. Now, regarding these, whether they are cardiovascular diseases, whether they are neurological diseases or any physical diseases, know well that somewhere the disease is starting in the mind. Somewhere the disease is starting somewhere in the mind. Law of attraction. You are attracting disease. I am not talking of karmic accounts and all those things, but in general, a person attracts disease. If this is your thought, thought is a thing. Thought is a thing. It's an object. This is the object, you are holding it. In the similar manner, thought is a thing. A thought generated from the mind goes out into the atmosphere. Similar thoughts are there. It attracts those thoughts. And situations are created. संकल्प मन में उठता है, संकल्प मन से बाहर प्रकृति में जाता है, समान संकल्पों को ढूंढता है, दोनों संकल्पों की रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है और घटनाओं का निर्माण. घटनाओं का निर्माण कैसे हो रहा है? संकल्पों से. एक व्यक्ति है जो सोचता है मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता. वो संकल्प प्रकृति में गया. गरीबी के दूसरे संकल्प है संसार में. वो संकल्प और वो संकल्प एकत्र हुए और फिर गरीबी क्रिएट हुई. This is a creative energy, cosmic energy which is there and it will pull and situations are created. एक व्यक्ति है एकदम गरीब है, सोचता है मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ और हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं. वो अमीरी के संकल्प प्रकृति में जा रहे हैं और घटनाएं निर्माण हो रही है जिससे वो और अमीर बनते जाता है धीरे धीरे. जॉर्ज वॉशिंगटन छोटा सा बच्चा था, 10 साल का, खाने को पैसे नहीं, पढ़ने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास. उसका काम था स्कूल में जाना और घंटी बजाना, बेल. स्कूल में तो पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, घंटी बजाना खाली 2 पीरियड के बीच में, टन टन टन, यही उसका काम था. वो क्या करता था? आई जॉर्ज वॉशिंगटन वुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे. टन 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 बजाते बजाते मन के मन में ये रिपीट करते रहता था. I, George Washington, would become president of America one day. I, George Washington, would become president of America one day. वही देखते रहा, वही अंदर ही अंदर वो विचार. वो बच्चा, that urchin, from where he had no money even to study. उसके पास तो पैसे ही नहीं है, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है. But that thought he created, वो thought एक दिन materialize हो गया and he became. मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ. हमारे मेडिकल कॉलेज में जहाँ मैं मेडिकल MBBS के लिए था, एक दूसरा इंटर्नशिप के लिए नागपुर जब हम गए थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, वहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आईचीत. ही वॉज द डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, हेड ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजी. तो उन्होंने एक बार अनुभव सुनाया था. उनका लास्ट डे था, ही वॉज गेटिंग रिटायर्ड. सो ही शेयर्ड वन एक्सपीरियंस. ही सेड दैट when I entered this medical college in 1960s, नागपुर मेडिकल कॉलेज, पहला दिन रैगिंग का डर, भयंकर रैगिंग. नागपुर मतलब जबरदस्त रैगिंग. उस पहले दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट MBBS स्टूडेंट कॉलेज को देखा और संकल्प किया कि इसी मेडिकल कॉलेज का एक दिन मैं डीन बनूंगा. He made this thought. और फिर कितना कुछ हुआ, कितना बीच में तो हजारों पड़ाव उन्होंने क्रॉस किए. बट दैट ड्रीम, दैट थॉट, ही वाज सीइंग. विजुअलाइजेशन, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन. 3 words. विजुअलाइजेशन, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन. जो बनना है उसे देखना, उसमें कलर भरना,
पिक्चराइज करना, उसको चलता फिरता देखना। उन्होंने देखा कि ये मैं हूं और ये बन रहा हूं, एंड ग्रेजुअली वो इमेज और वो एक होते हैं। मुरलियों में आता है, देखो अपने संपन्न स्वरूप को, देखो अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप को, देखो समान संपन्न संपूर्ण देखो, और जो जितना क्लियरली उसको देखेगा उतना वो धीरे धीरे बनेगा। Goal should be very, very clear. So, this book is very important for you. One, okay? And there's one more book, Atkinson is the name of the author, Power of Vibrations. Atkinson. This is available free of cost on Google Play Store. That is different. This is also different. You are talking of Walter Cannon? Atkinson. Acha, first name. Okay, I forgot that name. Walter Atkinson. So this is a very beautiful book by Atkinson. You can go through that. These two books I recommend for all those who are going to become spiritual counselors. Now, as I said, any person who comes to you for counseling, okay, he must be having some or other physical ailments also. Suppose suddenly a person goes for sonography, finds his kidney is not good, blood test done, suddenly finds that creatinine is 7, and the very next day doctor tells you will have to undergo dialysis, and then he accepts this. Within 10-15 days dialysis is started and he becomes a dialysis candidate. Okay, now he is coming for dialysis twice a week for dialysis. That is going on. Now this is at one level, this is there. Now internally what his mind is happening to his mind. Earlier he used to do everything independently, now suddenly he has become dependent. Now there will have to be somebody who takes him to the dialysis. In the similar manner, suddenly a person is diagnosed with cancer. Okay, so cancer treatment is going on, chemotherapy is going on, everything is going on, but this is still at a superficial level. Inside, this person has got depressed, dejected. Why? Because sudden sense of dependency. Earlier, he used to pride himself in remaining independent. Suddenly, person has become dependent on somebody. So, whenever any person who comes to you for counseling, always remember what are his physical problems. Like he might be having diabetes. If he is a diabetic patient, is he taking medications or insulin? Some oral medications or insulin, ADA or anti-diabetic agents or oral hypoglycemic agents, or he is on insulin. If he is taking insulin, how frequently he is taking insulin? Is he missing some doses? What are the financial issues with that? So there are many things which are connected to each other. Probably this itself is causing him stress. You can read in your books how stress is related to so many diseases somewhere or other. Everywhere there is a stress. A stressor is coming and person HPA axis is activated. Hypothalamic pituitary adrenal axis, that is getting activated. And that stress is creating a lot of things in the body. Stress is acting at the mitochondrial, cellular level, so many different organ level it is acting and creating a lot of hormonal disturbances, sort of neurotransmitter disturbances, and the result is disease. So any person, whether it is, is he having kidney problems, is he having hypertension, is he having diabetes, obesity, anything. Sometimes we find in our practice that thin-built patient come. They are unhappy because they are not gaining weight. And that itself is responsible for their depression. Psychiatrist is treating depression part, but one thing which is missing is that health part. So physical level is also very important. You can't just hope to avoid or just neglect that level. Always, any person
know his physical problems, diabetes, hypertension, obesity, or if nothing of those things, any relative of that person is having all those issues. Even that affects. That might be the reason that he is suppressed, he is depressed. Physical part. Now this stress, this doctor, hence it is actually pronounced as Zeli. Hence Zeli. He has done the maximum work on stress. And 2 words, Hindi? Both? Actually, I can go on one only. If it is Hindi, it is always Hindi. If it is English, then I have to continue only in English. But still, I try. Okay. So, ये जो डॉक्टर था, हैंस सेली, सबसे ज्यादा काम इसने स्ट्रेस पर किया. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसने किए. बहुत सारे चूहे लिए, रैट्स, और उनके ऊपर नए नए कुछ चीजें इंजेक्ट की, उनके केमिकल्स, और पाया कि उनके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं. और बाद में पता चला ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो जो इंजेक्ट कर रहा है उनकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि रिस्पांस वो लोगों का सेम ही है. अंदर स्ट्रेसर्स अलग अलग थे पर रिस्पांस अंदर जो हो रहा था वो एक ही था. तो उसने 2 टर्म कॉइन किए, एक डिस्ट्रेस, निगेटिव स्ट्रेस, और एक पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको कहा यू स्ट्रेस. ये 2 टर्म इसने कॉइन किए और इस पर बहुत ज्यादा काम किया उसने. फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि इसमें तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. उसको पता चला धीरे धीरे इसमें ब्रेन में एक हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, और फिर यहाँ पर नीचे किडनी के ऊपर एड्रिनल है, और इन तीनों का कनेक्शन है. जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है ये एक्सिस एक्टिवेट होता है, HPA. इसको उसने कहा HP एक्सिस. स्ट्रेस पर सबसे ज्यादा काम इसी व्यक्ति ने किया है. या फिर ये भी कहो कि स्ट्रेस ये शब्द ही इस व्यक्ति ने निकाला. इसके पहले स्ट्रेस शब्द किसी को पता ही नहीं था क्या है. सेली ने ही ये स्ट्रेस शब्द भी कॉइन इसी ने किया. HP एक्सिस भी उसी ने बताया. बहुत सारे काम इसने स्ट्रेस पर किए. पूरा जीवन ही दे दिया उसके लिए, पूरा जीवन, केवल ये सारी डिस्कवरी करने के लिए. तो ये एक ऐसा है, जैसा ही कोई भी स्ट्रेस आता है, दैट स्ट्रेस कुड बी एनीथिंग. वो स्ट्रेस कभी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वो स्ट्रेस कभी कुछ एनवायरमेंटल हो सकता है, वो स्ट्रेस कभी कोई एक थॉट हो सकता है, कोई इवेंट, एक्टिविटी और सर्कमस्टांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसने कहा, इस पर उसने बहुत काम किया और उसने ये बताया कि ये जो स्ट्रेस है जब जब आएगा तब तब शरीर में कुछ होगा, कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, और वो सारे हार्मोन्स की वजह से बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, पॉजिटिव वे से या निगेटिव वे से. डिपेंड करता है कितना बड़ा स्ट्रेस है, कितना बड़ा स्ट्रेसर है. कभी यू स्ट्रेस भी हो सकता है तो कभी डिस्ट्रेस भी हो सकता है. दोनों ही चीजें हो सकती है. कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. तो स्ट्रेस इतना सूक्ष्म हो सकता है कि वो पकड़ में भी नहीं आता है. हो सकता है कि जो मरीज आपके पास आ रहा है काउंसलिंग के लिए, उसके घर में कोई बीमार है, उसका इसको स्ट्रेस है. हो सकता है बीके फैमिली में बच्ची है जो सेंटर पर रहती है, उसको वहां कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है. इसके लिए माँ बाप इधर स्ट्रेस में, सारा ही परिवार ज्ञान में, पर उसको डिस्टर्ब हो रहा है करके ये लोग डिस्टर्ब है. आपके पास काउंसलिंग के लिए वही सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आएंगे. एंड ऑलवेज थिंक दैट एवरीबडी इज अ सेट ऑफ संस्कार, एज आई वाज टेलिंग जस्ट नाउ. हर एक व्यक्ति एक सेट है संस्कार का. जब भी कोई आ रहा है वो एक सेट आ रहा है संस्कार का, एक कॉम्प्लिकेटेड सेट, एक कॉम्प्लेक्स सेट जिसमें बहुत सारी चीजें हैं. और अभी आपको इसको स्ट्रेस से रिलीव करना है. एक नेगेटिव ऊर्जा लेकर आ रहा है. एवरी पर्सन इज ब्रिंगिंग दैट नेगेटिव एनर्जी व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक और योर होम और अदरवाइज ऑल्सो. फर्स्ट थिंग इज टू मेक हिम रिलैक्स. पहले उसको थोड़ा शांत करो. कई बार सबसे बेस्ट तरीका है काउंसलिंग चालू करने का. हम उसको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते. उसको कहना है कि जस्ट हम 2 मिनट मेडिटेशन में बैठे. कुछ नहीं पता, हमने कुछ बात भी नहीं की, कुछ नहीं, हम शुरुआत ही मेडिटेशन से करें. क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव ऊर्जा लेकर आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए. उसके बाद में फिर जो 2 मिनट हमने किया उसकी कोई चर्चा नहीं करना.
क्या किया, सीधा चालू करना, हाँ आप कौन हैं, हम ये है, अपने को इंट्रोड्यूस करो, उनको इंट्रोड्यूस करो और बात चलो। कहीं पर भी ये नहीं पूछना बोलो आपकी प्रॉब्लम क्या समस्या है, क्यों आए। डोंट स्टार्ट लाइक दैट, गो इन अ राउंड अबाउट वे, स्टार्ट इन अ फ्रेंडली टॉक, फ्रेंडली डिस्कशन। वो चालू किया, फिर धीरे धीरे बड़ी युक्ति से लेट हिम ब्रिंग आउट दो, उसको खुद ही बताए, बजाय इसके कि हम पूछे तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। दिस इज ऑल्सो वन वे, बट द बेस्ट वे इज लेट हिम स्पीक आउट, लेट हिम। इंग्लिश में एक शब्द है कैथारसिस, पता है कैथारसिस मतलब पूरा के पूरा बाहर निकालना, वेंटिंग आउट एवरीथिंग। दूसरा एक शब्द है पर्गेशन, पर्गेशन मतलब लैक्सेटिव होते हैं ना मेडिसिन में, पेट साफ होने के लिए दी जाती है, वैसा मेंटल लैक्सेटिव, दिस इज नोन एज पर्गेशन। पर्गेशन अर्थात पूरा के पूरा बाहर निकालने दो उसको, कुछ भी जज नहीं करो, उसको अपनापन लगे कि ये मेरे है। एंड वन मोर थिंग, एक पर्सन की बात दूसरे पर्सन को कभी नहीं बताना, सीक्रेसी, नहीं तो वो बताना बंद कर देगा। नहीं तो अभी एक पेशेंट आया, आप उस दूसरे को बताया तो ही मे नॉट लाइक। ऑलवेज हैव टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज, दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एक काउंसलिंग के लिए आया हुआ व्यक्ति, उसकी बात कहीं पे भी नहीं बताना, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल। उसने आपको बताया ना तो बस वो आपके जहन में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, आप तक ही रहनी चाहिए वो बात। दिस कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कई इधर से उधर करते रहे हम तो दे विल लूज देयर फेथ। एंड एक्चुअली रिमेंबर, इट इज अ फेथ दैट वर्क्स, इट इज अ फेथ दैट वर्क्स अल्टीमेटली। हेलन केलर छोटी सी बच्ची थी, उसको दिखाई नहीं देता था और उसको सुनाई नहीं देता था और बोल नहीं पाती थी। उसकी जो टीचर आई एनी सुलिवन, उसने किस ढंग से उसको सिखाया, ये आप सीखो, तो दैट शी इज द बेस्ट काउंसलर आई विल से। एक आप चाहे तो देख सकते हैं, एक इंग्लिश मूवी है द मिरेकल वर्कर, द मिरेकल वर्कर, द मिरेकल वर्कर, जिसमें हेलन केलर छोटी सी है, उसके माँ बाप परेशान है क्योंकि शी इज थ्रोइंग स्टैंडर्ड टेंट्रम्स, इतनी चिड़चिड़ापन कर रही है, चीजों को उठा पटक के फेंक रही है। अब उसको कौन कंट्रोल करे और कौन सिखाए, उसको तो बोलना ही नहीं आता है, और सीखे भी कैसे विद दिस मेंटली हैंडीकैप। तब ये एनी सुलिवन वहां आती है। एनी सुलिवन उसको इतना, मतलब जिस ढंग से पेशेंस से, वो पेशेंस होना चाहिए काउंसलर। कितनी बार तो उसको कमरे में लॉक कर दिया, उसके कपड़े सारे खराब कर दिए, बट स्टिल शी टॉट हर। दूसरी कोई होती तो भाग गई होती, ये तो बहुत भयंकर लड़की है, इसके वो फंदे में कौन फंसेगा। शी परसिस्टेड, शी टॉट, एंड they became lifelong friends later on. So that amount of patience and that amount of even confidentiality is required. The miracle worker, you can see that later. Okay? Now, yeah? That I don't know. There might be many, this one I know. Okay? So, a person comes, you make him sit in meditation, one, second, then start conversing with him. Let him tell you everything. Keep that confidential, have perseverance, have unlimited patience, and try to understand his history. Your history, then you enter. Let him first finish, and then you ask your leading questions. Your questions will start right from the childhood. Your questions will start from present illnesses. Now, there is one word which is there in the book, metabolic syndrome. I try to understand. Metabolic syndrome. This is 4 things. There is the hypertension, there is diabetes, there is obesity, okay, dyslipidemia or insulin resistance, some say. Insulin resistance, even dyslipidemia you can add.
even if there is something which is known as spiritual metabolic syndrome, syndrome X. This hypertension, your book will tell you one of the causes is stress somehow. If even not just hypertension, person is in stress, the level of stress, mental hypertension. One is physical hypertension, another is mental hypertension. Always in stress, always type A personality. There are two types of personalities, type A and type B. Type A means anxious, type A means running, type A means उतावले है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डेडलाइंस है, वही मीट करनी है और उसके लिए टेंशन है, दिन रात सोच रहे, भाग रहे, क्या करना है वो उनको जैसे कुछ छूटा जा रहा है. दिस इज ऑल. बहुत हाइपर वाली जो पर्सनैलिटीज होते हैं उन्हीं लोगों को देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा हाइपरटेंशन होता है. बट अगर नहीं भी हुआ तो भी उनको मेंटल हाइपरटेंशन होती है. दे सफर फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस. टाइप ए पर्सनैलिटी. टाइप बी जो होते हैं वो उसके अपोजिट, लिटिल काम, उनमें भी देखा गया है, बट मे बी कॉजेज आर जेनेटिक एंड अदर्स. डायबिटीज, this is the second thing. This is responsible for this, and this is also included in that. Obesity, sedentary lifestyle. These are some of the risk factors I'm telling you for the metabolic disease. Insulin resistance, dyslipidemia, cholesterol बढ़ा हुआ है, lifestyle ही ऐसी है, खान पान का परहेज नहीं है. So all these physical factors are there. तो जो भी व्यक्ति सामने आ रहा है उसकी आपको एक मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी है, चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी है, पास्ट हिस्ट्री लेनी है, मेडिकेशन हिस्ट्री लेनी है, फाइनेंशियल हिस्ट्री लेनी है, आर्थिक. महीने का खर्चा कितना है आपकी दवाइयों का? वो कहेगा 20,000, कोई कहेगा 10,000. कैन यू इमेजिन 10,000 एवरी मंथ? दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस. दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस. आप भले बाकी सारी चीजें बताओ पर इसको अगर सॉल्व नहीं किया, उसको कुछ युक्ति नहीं बताई, तो शायद he is not benefited. So all these things are there. They all constitute metabolic syndrome X or this thing. And then heart attacks, all heart problems start. Heart attack, arrhythmias or whatever, so many are there. Heart disease, rheumatic heart disease, and so many all other things. They might be because of infection, but stress is an underlying factor in most of these diseases. And it worsens. And the person who is already having stress, if these diseases occur, the chances that these diseases will take a very, very difficult course is more. लंबा समय तक चलेगी. Type A में जो अगर बीमारी होती है, इसके लिए you have to work at the level of emotions. You have to work at the level of feelings. You have to work at that subconscious mind, because ये सारा जो है ये बाहर का मैनिफेस्टेशन हो रहा है. डीप अंडरलाइन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, उस पर काम करना है. उसी तरह स्ट्रोक, लकवा, हो क्या रहा है ये सब चीजें? क्लॉट फॉर्म हो रहा है, वो हार्ट में जा रहा है, हार्ट अटैक. क्लॉट फॉर्म हो रहा है जो ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन अटैक, और जिसको स्ट्रोक कहते हैं. कभी लंग्स में जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, व्हाटएवर. ये सारों के पीछे स्ट्रेस इज रिलेटेड एवरीवेयर. उस स्ट्रेस को आपको पकड़ना है कि ये जो सामने व्यक्ति आया है, इसका स्ट्रेस है किसका. उसको आपने अगर पकड़ लिया ना, तो ऑल योर काउंसलिंग विल बी अकॉर्डिंग टू दैट. एंड वन मोर थिंग विच एज अ काउंसलर यू कैन डू, you can always recommend them names of good doctors for their physical problems. Suppose एक डॉक्टर के पास 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है पर ठीक नहीं हो रहा है, you can always suggest them to go for a second opinion. थोड़ा सा you have to become like a physician, कि उसको ये भी आप सजेस्ट करो कि इसके पास जाओ, देखो what happens.
Give him some general knowledge. And one more thing, if you have internet and all media with you, you can always go on the net and search something about that disease, some rare disorder. हमारे पास एक छोटी सी लड़की आती है, फ्रेडरिक अटैक्सी है उसको, BK 20 साल की. उसमें धीरे धीरे अभी उसका चलना बंद हो रहा है, दीवार को पकड़ पकड़ के चलती है. She comes here for magnet therapy and counseling, but she is very happy inside. जब आई थी she was very dejected, but उसका काउंसलिंग और वो सब जब चालू होगा, अभी तो घर पे ही बैठ के she does numerology and what was doing some work. नहीं तो एकदम she was becoming hopeless. That counseling has helped her a lot. So थोड़ा सा वो बीमारी के बारे में भी पढ़ना, थोड़ा सा उस बीमारी को भी जानने की कोशिश करना. Suggest them different things. If you know some therapy, if those therapies you don't know, suggest them some alternative therapy, magnet therapy, Reiki. So many are there. All these things can help. Okay, so this is one level of stress. So I was talking about stroke again. All the risk factors are same. If this happens, immediately treatment should be given, medical management and all those things, which I think you need not to go in detail of that. But now coming to the spiritual part of all of this again, for my own self, this I talked about counseling part. पर यदि हमें खुद स्ट्रेस है तो हम क्या करें, यदि हमें कुछ डिप्रेशन है तो हम क्या करें, फोबियाज है तो हम क्या करें, यदि हमें खुद ही OCD है तो हम क्या करें, यदि हमें खुद ही हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, या फिर BP है, शुगर है, ओबेसिटी है, तो हम क्या करें. पहला ये वाली पार्ट है, बाकी तो आपका काउंसलिंग पार्ट है. इसमें आपको योग के प्रयोग करने हैं अपनी बीमारी पर. दादी जानकी कहती है, मैं हर सुबह 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती हूँ. माइग्रेन बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट. IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेशेंट घूमते ही रहता है डॉक्टर्स के पास, आज इधर आज उधर आज उधर, एक डॉक्टर के. अल्सर्स, दीज आर मोस्ट ऑफ द फंक्शनल डिसऑर्डर्स है जिसका संबंध इधर है ब्रेन के साथ. 80% कनेक्शन साइकोलॉजिकल. कुछ ऐसी बीमारी है साइकेट्री की, उसमें एक टर्म होता है जिसको कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन. साइकोमोटर रिटार्डेशन, इसमें पेशेंट अपने आप स्लो हो जाता है. ऐसे आपको लगता है क्या हो रहा है, क्यों ऐसा स्लो हो गया, पूरा सिस्टम ही स्लो हो गया, सोचना भी स्लो हो गया, चलना फिरना भी स्लो हो गया. कोई बीमारी नहीं है, पर ब्रेन साइकेट्रिक इलनेस है, साइकोमोटर रिटार्डेशन भी हो जाता है. यदि ये सारी चीजें में से कुछ एक हमको हो गई तो हमें क्या करना चाहिए. सी, हार्ट इलनेसेस, स्टमक इलनेसेस, सबसे ज्यादा कनेक्शन स्टमक इलनेसेस का ब्रेन के साथ है, बहुत ज्यादा. IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को लूज मोशन होते रहते हैं. एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, एक लूज मोशन प्रीडोमिनेंट है, एक डायरिया प्रीडोमिनेंट, एक C और एक D होते रहते. सारे कोलोनोस्कोपी कर लिया, इंडोस्कोपी कर लिया, सारी चीजें की, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में तनाव है. हमको अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में जब हम योग करते हैं, उसके लास्ट पार्ट में मे बी 4:30 से लेके तो 4:45, ये जो 15 मिनट या 5 मिनट, इसमें अपने ही शरीर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं. एक एक ऑर्गन को देखना और उसमें वाइब्रेशंस देना. किसी को पेट की तकलीफ है, इमेजिन करो कि प्योर, और कौन से वाइब्रेशन देना. इसमें बहुत सारी कलर थेरेपी, वो सारी चीजें बताते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग ओनली वन वर्ड, प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन. जब कुछ भी समझ नहीं आए क्या देना है, पॉजिटिव और प्योर एनर्जी मेरे पेट में जा रही है, लिवर में जा रही है, लंग्स में जा रही है. ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी को स्पिरिचुअलिटी का कोई नॉलेज नहीं है, सारा बेसिस क्रिश्चियनिटी का है, पर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो कैंसर था चमड़ी का, सारे डॉक्टरों ने बोल दिया अब तुम्हारा बचना मुश्किल है. वो सारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग किया और अपने आप को ठीक किया उसने.
सब ने तो डिक्लेयर कर दिया था यू विल नॉट सर्वाइव, बट ही सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग टाइम विथ हिज माइंड पावर. उसके बाद ये किताब लिखी उसने. तो give vibrations to your all body. 1. Second, do not have negative thoughts for your body. अब ये मौसम चालू हो गया ना, अभी मुझे अटैक आएगा. सर्दी तो होती है, हर मौसम में होती है. यू पहले से ही डिसाइड कर रखा है, ये ऐसा मेरे साथ होता ही है. प्रिपेयर की है भूमि एक हमने, ये ऐसा मेरे साथ पहले ही होता है, पहले से ही सोच के रखा है. जैसे कि कभी रात में बुखार जैसा लग रहा है, बुखार है नहीं, लग रहा है, पहले से डिसाइड कर लिया कल अमृत वेला लेट उठेंगे. बाबा को भी पता है, पहले डिसाइड कर लिया कि कल अमृत वेला, क्यों? क्योंकि बुखार लग रहा है. कोई कहता है थर्मामीटर है उससे मत चेक करो, नहीं आया तो फिर मुश्किल है. We love that illnesses somewhere, you know, we have lot deep love for illnesses. अब बाहर से तो हम कहते हैं दवाई डॉक्टर ठीक नहीं होने, पर अंदर से चाहिए. बहुत अच्छा लगता है कईयों को तो. हाँ, जब ऐसी सलाइन चढ़ती है और वो एक एक बूंद जब सलाइन की टपकती है, अंदर ही अंदर गदगद होते हैं. हम भी कुछ है, कब तक जाते रहे दूसरों को बीमार हुआ फूल, हमको भी तो देखने कोई आए, हम भी तो बीमार पड़े, हमको भी तो कुछ हो, हमको भी तो कोई बड़ा कुछ हो. हम भी कोई कम बीमार थोड़ी है. ऐसा डॉक्टर को होता होगा. नहीं, देयर आर, दिस इज माइंड जो है ना अलग अलग रीति से काम करता है. उसमें ये भी होता है, उसमें ये भी होता है जल्दी ठीक भी हो जाओ, फिर ये भी होता है कि नहीं थोड़ा जल्दी ठीक नहीं हूं, उसको ये भी होता है कि थोड़ा और रहो तो और लोगों को पता चल जाए. वैसे तो कोई पूछता नहीं, सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं, तो ये थोड़ा अट्रैक्ट भी करता है. इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है. वैसी हम कहते हैं कई बार पेशेंट को अभी आप डिस्चार्ज करते हैं, नहीं रुको मेरा बेटा आने वाला है, उसको आने दो देखने. तो हम कहते हैं वो तो आपको उधर पांडव भवन में मिल जाएगा ना बाद में, वो वहीं आ रहा है. नहीं उसको यहाँ आने, वो देखेगा कि माता जी एडमिट है तो 2 दिन रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है ना. फिर टिकट बनाएगा, फिर साथ में ले जाएगा. तो these are the few things. So never have negative thoughts for the body. This is the second principle. Managing all ये सारे जितनी डिसीजेस है, not only cardiovascular. हम अपने शरीर के बारे में बहुत नेगेटिव है कहीं ना कहीं. Have positive thoughts for the body. Saint Francis de Sales, Roman Catholic saint, he has written in his autobiography or in his book, or some of the persons who were there with him, they wrote that when he was dying, at that time, he had a conversation with his body. He was saying, "Oh my body, I tortured you so much in my life. I made you to undergo so many fasts and so much, but I never realized that in sitting in you only, I could love Jesus Christ so much. And today, now I am about to depart from this world. I thank you for all that you did for me. Had you not been there, I would not have loved my Lord so much." बड़े भाग मानुष तन पावा. ये जो मनुष्य तन मिला है, संत कहते हैं कि बड़े भाग से मिला है. इसकी देख रेख करो, इसको धन्यवाद भी दो, इसको टॉर्चर नहीं करो, इसके प्रति निगेटिव नहीं बोलो, ये तो है ही शरीर ऐसा है, इसके कर्म भोगी है, ये है वो है. तो दिस इज सेकंड. थर्ड, कंप्लेनिंग अबाउट बॉडी. कंप्लेनिंग अबाउट बॉडी, ये ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक, ये अभी बीमारी से निकले नहीं तो वो बीमारी अभी, पता नहीं क्या है ये. और दूसरा कंप्लेनिंग अबाउट डॉक्टर्स, कंप्लेनिंग अबाउट हॉस्पिटल्स, ये भी ढंग का नहीं है, वो भी ढंग का नहीं है. ये सब लूटने वाले हैं. इतना कईयों के मन में इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है कि यही एक बॉन्डेज हो गया है, बैरियर हो गया है उनके ट्रीटमेंट में. उनके मन के अंदर ही मेंटल ब्लॉक है जिससे वो ठीक नहीं हो पाते. वन मोर थिंग, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट नॉलेज. यदि हम खुद बीमार है, उस बीमारी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करो. क्या है? माइग्रेन है, स्टडी माइग्रेन इन डिटेल. आईबीएस है, स्टडी आईबीएस इन डिटेल.
अल्सर्स है, स्टडी अल्सर्स इन डिटेल। बीपी है, अभी हम देखते हैं 40 साल से किसी को बीपी है, पूछो आपकी दवाई कौन सी चालू है, नाम पता नहीं। दे आर टेकिंग एवरी डे बट दे डोंट नो द नेम। 40 साल से बीपी है, शुगर है, परंतु बीपी का गोली का, शुगर की गोली का नाम नहीं पता है। एजुकेट यूर सेल्फ अबाउट इलनेसेस। यदि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, एजुकेट यूर सेल्फ। स्ट्रेन हो जाता है, गो ऑन द इंटरनेट, रीड अबाउट स्ट्रेन। आंखों में दर्द हो रहा है, कंजंक्टिविटिस, रीड अबाउट कंजंक्टिविटिस। जब हम ये आदत है डालेंगे ना, तब हम जब पेशेंट आएगा ना, वो कहेगा कि मुझे पार्किंसंस डिजीज है। What are the different aspects of Parkinson's, psychological aspect of Parkinson's disease? कोई कहेगा we know he is having Alzheimer's. What are the other issues about that Alzheimer's? We will develop that habit of knowing things. Try to understand your own disease. Very important. Next, visualization, creative visualization about body. See that you are becoming whole. अपने आप को देखना कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कल तक तो हो ही जाऊंगा, आज रात में बहुत बुखार लग रहा है, पर कल सुबह बाबा उठा देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। विजुअल, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। एक दूसरी टेक्निक है, इट इज पासिंग अवे, इट इज पासिंग अवे। दिट्स गिवन इन द सेम मर्फीज बुक। छोटी सी बच्ची को जुकाम होता है, वो कहती नहीं जा रहा है बुखाम तो चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा और चला जाएगा। ये नहीं पूछना ये क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ, बाकी सब तो ठीक है, मुझे ही डायरिया क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूं। धूप में जाते तो कुछ हो जाता है, कहीं का कुछ खाते तो कुछ हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। हो भी गया ना, ठीक है, एक्सेप्ट इट, गेट इट क्योर्ड। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ले लो, बाबा कहते ड्राई फ्रूट से खा लो और ठीक हो जाओ। ज्यादा संकल्प नहीं चला उसके बारे में, ऐसा ही क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। ठीक है, दिस इज वन। सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। देन साइंटिफिक प्रेयर। ऋषि लोग क्या करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। परंतु साइंटिफिक प्रेयर, इट मीन्स अफर्मेशंस। रिपीट करते रहो, अफर्मेशंस। उसमें विजुअलाइजेशन इंक्लूड है, रेपिटेशंस। म्यूजिक, सब्लिमेशन, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? सब्लिमेशन एक है, दूसरा है सबलिमिनल, लुमिनल मैसेजेस, सबलुमिनल मैसेजेस। इस पर इफ यू गो ऑन इंटरनेट यू विल गेट सम सूदिंग म्यूजिक, सबलुमिनल मैसेजेस। ये जो म्यूजिक होता है खास बनाए हुए हैं मेंटल हीलिंग के लिए। सोते समय म्यूजिक लगा दो और सो जाओ, म्यूजिक चालू रहेगा और सो जाओ। दे आर नोन एज, ये जो सबलुमिनल मतलब सीधा सबकॉन्शियस में जा रहा है, सोते समय ये सारी चीजें करनी है। दैट इज द बेस्ट टाइम कि हम सो गए, सोचो मेरा माइग्रेन जा रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं एकदम शारीरिक रूप से संपूर्ण रीति से स्वस्थ हूं, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। इस तरह के संकल्प, दे आर नोन एज सबलुमिनल मैसेजेस, वो क्रिएट करो। ऐसा कोई म्यूजिक बनाओ। वन मोर थिंग, नेचर, नेचर, प्रकृति। Why the system of Gurukul was in India? The same reason. एक होता है यहाँ बैठ के हम ये क्लास कर रहे हैं, या हम बैठ के एक कमरे में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, उसी वही चिंतन हम किसी नदी के पास बैठ के करें, इट विल बी डिफरेंट। किसी पहाड़ के पास खड़े, डिफरेंट। कोई झील है, लहर है, झरना है, वहां बैठ के करो, माइंड वहां खुल जाता है। इसके लिए जितना हो सके यू योरसेल्फ सीक नेचर एंड ऑल्सो नेचुरल थिंग्स, as much natural as possible. जितना ज्यादा आप प्रकृति के समीप जाओगे और नेचुरल चीजों के समीप जाएंगे, इवन नेचुरल डाइट,
you will become free of all the disease. सारी बीमारियों का अगर कारण है क्या है? प्रकृति के विरुद्ध. I can tell you one secret if you are not going to reveal it anywhere. It's one secret, but I don't want, and I never उसके बारे में कभी प्रचार नहीं करता हूँ. Nothing, never I talk. I myself, I eat only and only raw. Only raw. Anything which is touched by fire, solar cooker, or electric heat, I have not eaten from last 2 years. And I don't believe, it is not about naturopathy. It is a pathy. When you are sick, you do that. And I am not doing this. I didn't do this because I was sick. Because I was having some problem. People usually go to different pathies because why? Because they are sick, they are having problem, gas, this, diarrhea, or sugar high. I did not have any problem. It is a choice. It's a choice. They tell you dead chart. It's all that is as it is. Don't try to modify. If they are nuts, if they are dry fruits, don't try to roast them, don't try to fry them. As much you go, and I am not telling this, this probably has not come in Murlis, that is different. But I am telling you where I learnt it from. I learnt it from animals. Where I learnt it from? I learnt from deities. Satyug Treta. Devta kya khate? Yeah, tell me. I am not telling you to follow this. I am just telling you myself what I am doing. I am not telling you this everybody should follow, everybody should do, and this should be the protocol. Everybody's body is different. Some people say we reject, our body rejects that, and so many other things. But what I want to tell you is that before you come to any conclusion in diet, for yourself, for others, always experiment it on yourself. Yourself, rather than giving a bland statement and saying, oh, no, it's not possible for us. ये एक बार खा लिया तो ये हो गया था, वो हो गया था. It's not like that. द्वापर से जो पतन हुआ है, उसके दो कारण हैं देवताओं के, कुकिंग और देहभान. सत्युग त्रेता में, do you think the deities used to cook? No. And one more thing. If you want to accumulate the power of purity of brahmacharya, what should be the diet? Oily? Spicy? How the power will come? You can give bombastic lectures, but will you have that internal power? Outside person may talk on anything and influence people, but inside the power of dharana will come with control, will come with restraint, will come with atma sanyam. So that sanyam you get from natural things. And nothing will happen. Nothing will happen. I myself see myself. I thought, how is it? But I am seeing a miracle in front of me. I myself. I am doing it. Only fruits? Fruits, vegetables, nuts, everything that is natural. That's yet another controversial issue. I don't want to go into that. But I myself don't take anything that comes from animals. Anything that comes from animals. So, this is off the track. Keep it with yourself. Don't say that I have said this. This is a secret. Okay. So try to go as much natural as possible. Try to include as much natural things in your diet. Reduce all the oily things. Reduce all the cooked diet. Reduce all these things. At least out of the three, at least one diet you can make raw. Out of three. Breakfast, make it raw. And one more important thing I'll tell you about raw things, which there is always. I will give you one example. Okay, if suppose there is a mango season. Okay. Everybody is eating mango. Very nice mango. Twice, thrice you are eating. Mango season got over.
After that, do you miss mango? No. No. Whatever, but do you miss? No. Now, every day after food you are eating gulab jamun. 1 gulab jamun, 2 gulab jamun. Every day. Every day, otherwise you were eating mango after every food. Mango season got over, you did not miss mango. Here you are eating gulab jamun for 3 months. Maybe, just a hypothetical example. After that you stop, but now what happens? You want. You miss. All cooked things are addictive. All natural is without addiction. एक प्लेट में अंकुरित दिया हुआ है, ठीक है? दूसरी प्लेट में पनीर की बहुत जबरदस्त सब्जी है. अंकुरित खाया, खाने के बाद में आपको लगता है वापस थोड़ा लूं? नहीं, हो गया. बस एक कटोरी खा लिया. पर वो और भी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया. सीक नेचर एंड सीक नेचुरल. दिस इज द मंत्र. प्रकृति के समीप जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ. द लिसन द चिरपिंग्स ऑफ द वर्ड. वो पंछी, वो कलकल निनाद करते झरने. जितना जितना व्यक्ति प्रकृति के समीप जाएगा उतना वो स्वस्थ होगा. सारा ये जो पोल्यूशन है क्यों है संसार में, ये जो वॉर है क्यों है संसार में. कैन यू इमेजिन अ टेररिस्ट सिटिंग एंड ईटिंग फ्रूट्स? लेस लाइकली. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. और जो लोग जितना ज्यादा कुक में जाते हैं या बहुत सारी वेराइटीज, उसको धीरे धीरे फ्रूट्स हो इच्छा नहीं होती. कौन खाएगा एप्पल? अरे यू डोंट फील लाइक टू ईट एप्पल्स एंड सच थिंग्स. यू वांट सम पावरफुल माल चाहिए. अच्छा, हलवा बना है तो हलवा इधर भी खाओ, 2 कटोरी एक कमरे के लिए भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया. स्टडी ऑल दिस डिसीजेस, आपकी किताब में है सारा. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डाइट. फ्रेंच ये सारे फ्राइड, कितना डीप फ्राई करते हैं, ट्रांस फैट होता है उसमें, सारी बीमारी है उसमें. हमारे ओपीडी में एक साधु आया था, तो कहता था, उसको हमने कहा, बहुत पहले की बात है, कि आप ऐसे करो. हाँ, मेरा तो डाइट अच्छा है, मेरा कोई ब्रह्मा कुमारी जैसा थोड़ी ना है, 3 बार भोजन करते हो, 4 बार टोली खाते हो. ये बता के चला गया था एक बार. People know what we eat and they know that they don't have any control of food at all. Food habits. टोली मिल गई मतलब जरूरी है, उसको बिल्कुल डालना ही है अंदर. यहाँ हम दान का सोच ही नहीं सकते. फिर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हम सफल कर रहे हैं, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बाबा का है, ब्रह्मा भोजन है, फिर ये दादी ने दिया है, फिर इन्होंने दिया है, फिर इसको कैसे ये करे. सो मेनी थिंग्स वी हैव. अगर किसी ने कह दिया तो बस आक्रमण कर देंगे उसके ऊपर. इफ एनीबडी गिव्स एनी करेक्शन, खबरदार. योग के लिए 2 चीजें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट. जितना ज्यादा पेट भरा रहेगा उतना सुबह अमृत वेला नींद. क्यों नींद? क्यों सुबह कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, क्यों ऐसे गिरते हैं? दोपहर में See, the first, एक योगी अर्थात संयम. हम केवल अभी स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, हम योग और तपस्या की भी बात कर रहे हैं. वो जो ऋषि मुनि वहां जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, उनको भी ब्रह्मचर्य इतना कठिन था. यहाँ बैठकर पूरी की पूरी थाली भरी हुई है, कुछ नया रखने के लिए दे डोंट हैव, दे वांट अनदर. दूसरी प्लेट चाहिए, और उतना भी नहीं. और किसी बाजू वाले की प्लेट में खीर, वो तो बनी नहीं थी जनरल में, लाई कहां से, वो कहां से आई? टेल मी द सोर्स. तो ढूंढो उसको. वो कहां से आई? अरे वो तो छोड़ो, अभी कल परसों की ही बात है. एक बहन बता रही थी, मतलब एकदम वेरी सीरियसली, 18 जनवरी का सब ब्रह्मा भोजन वो सब था. अरे वो बाजू वाली जो बहन थी ना, उसके इसमें जो गुलाब जामुन था ना, मेरे गुलाब जामुन से बड़ा था साइज.
था तो दोनों तरफ, और उधर का साइज इधर से पड़ा था। मतलब कितनी पैनी नजर पूरा उसमें। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना मतलब सारा समय भोजन में डूब जाना, ऐसा तो नहीं है ना कि इज इट देयर। विवेकानंद हैज सेड समवेयर, इन इंडिया रिलीजन हैज बिकम as if this food has become, kitchen has become religion and food has become God. In India, religion, this kitchen has become religion and food has become God. So much they are involved in food and food and food. कोई भी इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, सबसे पहले खाने का ही। हाँ, पहले तो वही चाहिए, वो नहीं तो सब फीका है। जब भी ब्रह्मा भोजन होता है हम देखते हैं पांडव भवन में, सुखधाम में, दूसरे दिन 2-3 डायरिया वाले आ ही जाते। दे हैव टू कम। सी, अ गुड हेल्थ मीन्स, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो व्हाट आई एम फॉलोइंग, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, आई एम टेलिंग यू टू सी महात्मा गांधी का स्टडी, महात्मा गांधी होल लाइफ, ही हैज थ्रू आउट हिज लाइफ डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइटिक्स, क्योंकि योग, पैलेट एंड ब्रह्मचर्य आर कनेक्टेड विद ईच अदर। गरिष्ठ भोजन खाओ, बहुत मसाले वाला खाओ, और योग करो अशरीरी हो। कैन यू जिन्होंने भक्ति मार्ग में भक्ति की होगी, पहले उपवास किए होंगे, जिन्होंने उपवास किए होंगे उनको अनुभव होगा कि कितने कम भोजन पर शरीर रह सकता है। चिंता, हमको याद है हमारी माता जी 7-7 9 दिन नवरात्रि में कुछ भी नहीं खाती थी, उसको कुछ भी नहीं होता था, ना तो उसको भूख लगती थी, कुछ नहीं होता था और वो दिन भर काम भी करती रहती थी, और पैदल जाती थी वो अंबा देवी में 3 किलोमीटर बिना चप्पल। वेयर ऑल दैट एनर्जी वाज कमिंग। और यहाँ तो नाश्ता कम किया तो 11 बजे भूख लग जाती। दोपहर में आज तक किसका पेट भरा है? फैट्स, ऑल दिस थिंग्स, दीज आर ऑल, यू नो, उसमें बहुत सारी चीजें लिखे, लाइक कीप ऑन चेंजिंग द ऑयल, यूज डिफरेंट ऑयल, बट आई सजेस्ट व्हाट, यूज द बेस्ट थिंग इज ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट, बट इट इज कॉस्टली। हम अपने पेशेंट को पहले, जब मैं नया था ना, हम कहते थे ऑयल यूज करो, ऑयल ऑयल, वो बोलते डॉक्टर साहब पैसे आप दोगे क्या? इट इज सो कॉस्टली। बोलते थे हम, ये बुक में पढ़ा है ना, वो लो। सो बट सी, ट्राई टू यूज एज लेस एज पॉसिबल, एज लेस एज पॉसिबल। और ये जो है ना, इसको जैसी आदत डालोगे ना वैसी आदत डलेगी, जैसी आदत इसको डालोगे वैसी इसको डलेगी। इसको अगर रोज नमक खिलाओ तो इसको अगर 11वें दिन नमक, 10 दिन लगते हैं टेस्ट बर्ड्स को फॉर्म होने को, 10 दिन तक तो इसको बिना नमक का खिलाओ, 11वें दिन बिना नमक का ही अच्छा लगेगा। 10 दिन इसको फ्रूट्स खिलाओ तो इसको फ्रूट्स अच्छे लगने लगेंगे, ये हमारे ऊपर है। 10 दिन इसको बहुत, जब तक किचन से निकलते भोजन करने का ऐसे करते हैं परंतु छोड़ नहीं पाते, ये मजा नहीं आता है लोगों को, इतना तीखा चाहिए, इतना तीखा डालते। उधर चावल बना हुआ है उसको छोंक में डालो और उसको टेस्टी बनाओ, उधर दाल बनी हुई है उसको और छोंक लगाओ और टेस्टी बनाओ। दिस आई एम हियर टॉकिंग एट अ डिफरेंट लेवल, बट ऑल्सो लुक एट द मेडिकल पार्ट ऑफ इट। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, IHD, ये सब कहां से हो रहा है? यहीं से हो रहा है सब कुछ। इतना तेल, पूरा तेल तैरता है सब्जी में, उसमें इतना तीखा, फिर अल्सर हो गया। हमारे पास पेशेंट आता है, डॉक्टर अभी चालू करूं क्या मिर्ची? एक शी गॉट एडमिटेड विथ अपर जिया हिमरेज, मैसिव अपर जिया, छोटा भी नहीं, मैसिव अपर जिया हिमरेज, इंडोस्कोपी डन, फाउंड टू हैव अल्सर। अभी 2 महीने हो गए। जब भी आता है उसकी पत्नी भी बोलती है, डॉक्टर साहब आप बोलो ना कब करे चालू, थोड़ा तो बोलो तीखा। क्रेविंग, वैसे ही कैडबरी, खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मजा ही नहीं आता है। ये सब एडिक्शन है। ट्राई टू सेट योर बॉडी एट अ डिफरेंट लेवल एंड इट विल फॉलो, इट विल ओबे। जिसमें कोई एडिक्शन नहीं होगा ना तो माइंड भी वैसा ही स्टेबल रहेगा, पावरफुल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। सबकॉन्शियस में से निकालनी भी पड़ेगी। सबकॉन्शियस में इतना भर के रखा है हमने, इतना उसमें भर के रखा है, कहां से फीडिंग हुई पता नहीं, तो भर के रखा है, ये चाहिए वो चाहिए।
You have to deprogram, uncondition the conditioned mind, and the body will obey you, mind will obey you. You will feel a different level of energy. नींद, कम नींद परंतु शक्तिशाली हो जाएगी. कम नींद करेगा व्यक्ति परंतु रिफ्रेशिंग नींद होगी. कम भोजन खाएगा परंतु एनर्जी इतनी जबरदस्त होगी. This all things can happen. So food is important thing. So try to modify your food habits. Okay. Then walking. कौन वॉकिंग करता है डेली? एंड रेस्ट. एक विदेश के ऑथर ने लिखा है, एक दिन सुबह सुबह, एक दिन रात भर मैंने अपने पिताजी के साथ झगड़ा किया. हमारा झगड़ा हो गया, जबरदस्त इतना झगड़ा हो गया क्या बताऊं. सुबह होने तक मैंने बोल दिया अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा. लड़के ने बोला, जवान था, बोला अब मैं इस घर में रह ही नहीं सकता आपके साथ, और घर छोड़ के चला गया. अब चलते चलते निकल गया. सुबह 4 या 5 बज गए होंगे. जाते जाते पता चला पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि गुस्से में घर छोड़ा है, कुछ भी नहीं है. जा रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर. सुबह हो गई, सूरज निकल गया, पंछी की आवाजें, निसर्ग का सानिध्य. चलते जा रहा है और चलते माइंड इतना शांत हो गया और पता चला गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए, और वापस घर आया. बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में ये कहानी बताई जाती है. बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग. जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है वो वॉकिंग करो, डायमंड हॉल के चक्कर लगाओ, अपने आप वो जो मिसिंग लिंक जो है ना पता चल जाएगा. ये था मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा. 2 बार नोबेल प्राइज मिले उसको. द फर्स्ट वुमन टू गेट 2 नोबेल प्राइज, वन इन फिजिक्स एंड वन इन रेडियो केमिस्ट्री. द फर्स्ट वुमन. वो एक बार ओनली वुमन. वो एक बार फर्स्ट इन 1902, अनदर इन 1911 प्रोबेबली. वो एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, कोई एक नहीं सॉल्व हो रहा था. पूरा दिन लगा दिया, बोली छोड़ूंगी नहीं. और करते सो गई, लेट गई. और रात, और फिर सुबह उठ के देखा तो किसी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे, लिखे हुए थे. फिर उसको आया, ये कौन आया रात में. फिर उसने देखा उसकी हैंडराइटिंग है. फिर उसको याद करने की कोशिश की, क्या हुआ. फिर उसको याद है मैं बीच में आधी रात में उठी थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सो गई. सो सम पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस गॉट एक्टिवेटेड इन द सिमिलर मैनर. whilst you walk, some part of that subconscious gets activated, which is otherwise inaccessible, because otherwise you don't reach that level. वो बाहर आके कुछ काम कर देगा. हम एक समस्या है जीवन में, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इससे पूछो, उससे पूछो, ये पूछो, वो पूछो. एक दिन एकांत में खुद ही अकेले चल रहे, लॉन्ग वॉक, गो फॉर अ वेरी लॉन्ग वॉक, और उसमें थोड़ा ज्ञान का चिंतन, मुरली का चिंतन, वो करते अचानक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इवन दिस हैपेंस. सो नेचर एंड नेचुरल वॉकिंग, प्रकृति का सानिध्य. These are some of the methods which you have to practice and you have to teach, you have to tell. But ये सारी जो चीजें हम बता रहे हैं ना, पहले अपने ऊपर करनी है, चाहे भोजन की. और भोजन में और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, फूड चेंज शुड नॉट बी अ क्रांति. रिवॉल्यूशन नहीं करना, इवोल्यूशन करना हमेशा. इवोल्यूशन, इट शुड नॉट बी अ रिवॉल्यूशन. अरे ये क्लास सुना, फट से छोड़ दिया 3 दिन छोड़ा, उसके बाद में पता चला सिर दर्द, पेट दर्द, डायरिया, ये वो, खत्म सब. हमारे उधर हॉस्पिटल में, या बहुत पहले कभी एक व्यक्ति था, एक भाई था, और जिसको एकदम नशा चढ़ गया था. तब तो हम खुद भी नहीं करते थे ये, पर उसको एकदम नशा चढ़ गया था कि एकदम सब नेचुरली खाना है. 10 दिन एकदम नेचुरल खाए. फिर 26 जनवरी का पिकनिक थी हॉस्पिटल की, पीस पार्क में, और जो ब्रह्मा भोजन पर ऐसा टूट पड़ा कि पता नहीं कब से खाया ही नहीं. वो सबकॉन्शियस फ्राइड प्रिंसिपल, इंटरनल सप्रेस्ड डिजायर निकल गई. इसके लिए फर्स्ट थिंग इज एजुकेट योरसेल्फ.
कोई भी डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करने का, खाली पढ़ते जाओ डाइट के विषय। फ्रूट्स के बारे में पढ़ो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स, क्या क्या मिलता है इनसे, क्या क्या है इसमें, खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। करना खाना नहीं, पढ़ते जाओ। पढ़ते 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 लगेगा कि अब खाऊं, देखो तो क्या होता है। एक दिन थेपला छोड़ दिया तो कुछ मर तो नहीं जाएंगे ना, एक दिन छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। ट्राई अंकुरित, ट्राई स्प्राउट, ट्राई सम नेचुरल थिंग्स, यू विल फील मोर एनर्जेटिक रात। फिर बॉडी अपने आप सेट करेगा अपने आप को। अभी जैसा सेट हो चुका है ना, कई लोगों को इतनी भूख लगती है, इतना खाने के बाद भी 2 घंटे बाद तुरंत भूख लगती है। एक बहन जी आए थे हॉस्पिटल में, एक दूसरी बहन उसको लेके आई थी, उसके सेंटर पे हर चीज गिन गिन कर रखी है, एक भी चीज इधर से इधर अगर हो गई तो बड़ी बहन जी फिर एक भी चीज, 5 रसगुल्ले हैं तो उतने ही रहेंगे कल सुबह, एक अगर कहा तो कौन था। तो वो बहन जब मधुबन में आती है, उसको हर 2-2 घंटे में भूख लगती है। वो बोले इसका कुछ करो। हमने कहा क्यों भूख लगती है? तो नहीं बस लगती है, अब क्या करूं, इधर भी रखती हूँ, अभी खाती हूँ, फिर 2 घंटे बाद भूख लगती है। फिर हिस्ट्री पता चला तो ये निकला सप्रेशन, दमन हो रहा था उधर, वो बाहर निकल रहा है इधर। तो वैसे ही डाइट का है, एजुकेट करते जाओ अपने आप को डाइट के विषय में, ओबेसिटी के विषय में, डायबिटीज के विषय में, सारी बीमारियों के विषय में। जब हम जितना एजुकेट होंगे ना, उतना ही हम दूसरों को सिखा सकेंगे, बता सकेंगे। इन शुगर के लिसन हेल्थ क्लासेस यज्ञ में तो आज बहुत सारा है। मटेरियल इज टू मच एवरीवेयर, ओनली थिंग इज दैट वी शुड हैव सम टाइम टू थिंक, टू स्टॉप, टू कंटेम्पलेट। कितना टाइम हुआ? So I think I should stop here. If you have any questions, only 1 or 2 I would like to answer. Only 1 or 2, not more than that. And whatever we discussed, क्योंकि ये जो बताया ना, ये इतना गहरी बातें हैं कि I think one-on-one conversation alone can solve this each and every matter. This is I gave just a bird eye view of everything in the random and general. वैनिश ऑफ नहीं होगा, एक अव्यक्त वाणी है 27th July 1979, 27th July 1979, probably the only one अव्यक्त वाणी जिसमें बाबा ने विकारों को खत्म करने की बात नहीं कही है, परिवर्तन करने की बात कही है। ये एक मात्र ऐसी मुरली है कि नहीं तो हमेशा कहते हैं बाबा काम विकार को भस्म करो, विकार को ये करो। हियर ही हैज नॉट टॉक लाइक दैट। ही सेड ये जो 5 विकार है ना, अगर ही हैज गिवन वन एग्जांपल, बाबा ने एक उदाहरण दिया, यदि किसी राजा को हरा दिया जाता है तो वो बदला लेता है। यदि तुम इस विकारों को हराओगे तो वो बदला लेंगे। इसके लिए इनकी दिशा चेंज करो। ये जो काम है, इस काम को चेंज करो। ये शुभ कामना में he has given a full list of everything. Don't try to destroy lust. The sex lust is not going to get destroyed, but yes, this lust will it gets sublimated. उदात्तीकरण होगा उसका। वही दूसरी शक्ति है, जो ऊर्जा जो नीचे बह रही है और शरीरों को जन्म दे रही है, the energy which is flowing down and giving birth to bodies, the same energy will start flowing up. ऊर्जा बनेगी वो। It will go here in the language of scriptures, Kundalini and this Sahasrar and Agya Chakra and all those things will happen. The same energy. So try to change their direction. वो जो क्रोध है जो इधर आ रहा है उसको डायरेक्शन चेंज करो। ये जो है ना सारी नदियां जबरदस्त प्रवाह है, उनको रोका नहीं जाता है। नदी को तो जाना ही है सागर तक, खाली उसका चेंज द डायरेक्शन। जो भी इमोशंस है ना उसके साथ में लड़ो नहीं। ये जो कभी कभी मुझे लगता है बाबा जो ये कहते हैं ना क्रोध को जीतो, ये जीतना शब्द में युद्ध है, द्वंद्व है। जीतने से ज्यादा अच्छा शब्द है परे चले जाओ, गो बियॉन्ड इट। जैसे हम सब जब ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद में हम लोगों ने बाहर का खाना छोड़ दिया। कितना जल्दी छोड़ा? धीरे धीरे। आज ये महीने में जिलेबी छोड़ता हूँ, अगले महीने में फिर कचौरी खाना बंद करूंगा। ऐसा किया? क्यों एकदम छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया एकदम? क्यों हो गया ये इतना सडन परिवर्तन? कैसे हो गया ये? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। वैसा विकारों का नहीं हो रहा है।
क्योंकि मन में अभी भी इच्छाएं बहुत भरी पड़ी है, वो क्रोध अभी भी सप्रेस्ड फॉर्म में रखा है वहां पे, अहंकार बहुत ज्यादा है। और जितनी सेवाओं में व्यक्ति आगे बढ़ता है, अहंकार उतना ही आगे बढ़ता है। फिर वो सेवाओं का विस्तार, वो मैं का विस्तार हो जाता है। हमने ये सेवा की, हम ये सेवा करते हैं, हमने ये प्रोग्राम किया, मेगा प्रोग्राम किया। वो जो मैं है वो तो अपना नया रूप धारण करता है। मैंने ये किया, मेरे जैसे संसार में भी मैं बढ़ते जाता है। जो हम आए थे यज्ञ में तो छोटा आया था, अभी ये इतना बड़ा आया बन के बैठा है। एंड दिस इज नोन एज सरेंडर्ड लाइफ। बट इसमें ये आए देखो कहां चला गया है। ये यहाँ था, इतना डर था यहाँ पे, कभी कभी लगता है यही अच्छा था, छोटा था। ये अभी इतना सेवा हो गई। सूरज भाई जी हमेशा उदाहरण देते, एक बहन है, शरीर छोड़ा, बाबा के पास पहुंची, बाबा ने पूछा, बच्ची, हाइपोथेटिकल एग्जांपल भाई जी की, बच्ची बोलो क्या, बाबा ने पूछा, उसने नहीं बताया, वो बाबा पूछ रहे, बच्ची बताओ तुमने क्या क्या सेवा की। वो बताती है, बाबा मैंने इतने इतने लोगों का कोर्स किया, बाबा मैंने ये प्रोग्राम किए, बाबा मैंने ये सेंटर खोले, लाखों लोगों का कोर्स किया, इतने लाखों शिविर किए, ये सेंटर खुला है, ये सारा मैंने विदेश देश विदेश की सेवा, everything. She is not telling, Baba asked, that's why she is telling. And then ultimately what Baba is saying, बच्ची सब मैं कर रहा हूँ, तुमने क्या किया। So see, somewhere we forget that all these things, यज्ञ में जो कुछ हो रहा है ना, अपने आप सेवाएं हो रही है, हम यह मैं बीच में लाते हैं। ये सेवाओं का विस्तार नहीं, ये मैं का विस्तार है। ब्रह्मा कुमारी की आड़ में अपना महिमा, ब्रह्मा कुमारी को खाली ऊपर से बना रखा है, बाकी महिमा मेरी हो, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। ये सब क्या है, ये बड़े सूक्ष्म, ये मैं तो गए ही नहीं। अध्यात्म अर्थात क्या, मैं की समाप्ति। यहाँ तो मैंने विशाल रूप धारण कर रखा है अंदर से, अहंकार इतना ज्यादा है, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए, मेरी नहीं सुनते तो जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरी नहीं सुनते तो हम जा रहे हैं यहाँ से, अब देखो तुम कैसे करते हो प्रोग्राम मेरे बिना। So this is, it is, that's why it's not about fight with vices. It is about going beyond them. So learn this process of sublimation, udattikaran, pavitrikaran, divyakaran, sublimation or transformation or transcendence. You have to go beyond, परे निकल जाना ये सब चीजों से. Don't try to struggle with this. So mind में आपने जो बोला इतना कुछ भरा पड़ा है, अब वो सारा जो भरा है पड़े रहने दो, हम उससे ऊपर निकल जाए, वो नीचे रह जाएगा। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप में क्या होता है, एक मैसेज आ जाएगा इधर सबसे ऊपर आ जाएगा जो पहला है, अगर वो आया ही नहीं तो सबसे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा वो मैसेज। हमने क्या किया उसको नीचे जाने के लिए, ढकला के उसको, कैन यू पुल इट आउट, पुश इट डाउन, नो, वो अपने आप नया नया भरते जाओ। पर हाँ फिर भी संभावना एक दिन वो फिर से जब आ जाएगा ना सबसे टॉप पे आ जाएगा वही मैसेज विल बिकम द टॉप। पर हाँ यहाँ डिप्रेशन नहीं होना। फिर एक भाई का फोन आया था, 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, कल रात में स्वप्न में ब्रह्मचर्य भंग हो गया, क्या करूं, इतनी गिल्ट कॉन्शियसनेस आ गई। हमने उसको कहा गिल्ट कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं, जो मैसेज नीचे चला गया था ना वो यहाँ आ गया, अभी डोंट इग्नोर दिस, दिस इज अ शैडो, उसमें इतना फोकस मत करो। ये जो मेरा 5 साल का ब्रह्मचर्य का क्या हो गया, ये अचानक क्यों आ गया, मैंने तो सोचा था ये चला गया, आया तो ठीक, इग्नोर इट, शैडो है, परछाई है, भूल जाओ उसको, वो फिर से नीचे चला जाएगा। नाउ टेक केयर दैट नो ट्रिगर शुड कम। कौन सा ट्रिगर था, इस पे काम करो। ट्रिगर कौन सा आया, पोस्टर, वीडियो, क्लिप, ऑडियो, सॉन्ग, चित्र, बॉडी, रिलेशन, व्यक्ति, वस्तु, साधन, भोजन, क्या था, वर्क ऑन दैट, ताकि ये फिर से ना आए। रादर देन गिल्ट कॉन्शियस, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, क्यों हुआ, मेरा इतने साल का क्या हो गया, मेरा इतना ब्राह्मण जीवन, बाबा क्या सोचेंगे, बाबा क्या कहेंगे। गिल्ट कॉन्शियसनेस इज अगेंस्ट तीव्र पुरुष, रिमेंबर दैट। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी 87, पश्चाताप में भी समय वेस्ट मत करो, पश्चाताप में भी समय, पश्चाताप करो दैट्स फाइन, बट दैट डजंट मीन दैट यू कीप ऑन रिपेंटिंग, फॉरगेट इट, forget, things happen, let's forget, ignore it, it's a shadow। वो संस्कार इमर्ज हुआ ना, क्यों हुआ, अब इस पे काम करो, वो ट्रिगर को ढूंढो, वो उत्तेजना जो आई कहां से आई, वर्क ऑन दैट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
आई है, जैसे हम अपनी महिमा खुद भी करते, कई बार डाउन फील करते हैं, महिमा करेंगे तो क्या उससे भी आई इंक्रीज होगी? बहुत ज्यादा। मम्मा 3 मास तक बैंगलोर गई, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी सेवा की। मम्मा वापस आई, मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने क्या क्या सेवा की, क्या सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, नथिंग। सेवाएं कैसी थी? अच्छी थी। कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं, कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया, रात भर सुबह उठते ही देख रहे कितने आए, नथिंग। कमेंट्स कैसे है, लाइक्स कितने हैं, लोग क्या कह रहे हैं, पता सबको चल जाए, कोई नहीं लेने देना। काम किया, भूल जाओ, फॉरगेट इट। हाँ, अगर कोई कहे कि ऐसे यज्ञ में नियम है कि भाई सेवा समाचार सुना, डिटैच। सुदेश बहन ने अभी भी क्लास में कहा था, हम सब कौन है? नल है, ये तो टंकी है। नल की क्या महिमा? पानी ऊपर से आ रहा है, यू आर नल, यू आर टैप। ऊपर से पानी आ रहा है, उसकी महिमा करो, हम नल है। अब उसको चाहे, मोहम्मद रफी हैड सेड अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मोहम्मद रफी सबने सुना है ना, उसने कहा कि खुदा अगर चाहता तो ये जो आवाज है ना किसी और गले में भी डाल सकता था। लुक एट हिज ह्यूमिलिटी। ये मेरी क्या महिमा, मेरी कुछ महिमा है ही नहीं। वाइल मोहम्मद रफी की आवाज दुनिया में एकमात्र 5000 साल में ऐसी आवाज एक ही होगी खाली। पर क्या कहा उसने? उसको अहंकार नहीं, अगर वो चाहता था तो ये आवाज किसी और में भी डाल सकता था। दैट वॉज द लेवल ऑफ हिज ह्यूमिलिटी। और जहां बॉसिंग और ये सब जो होता है ना, रिमेंबर दैट वहां बाहर से बहुत सारी बड़ी सेवा करो, 1000 लोग ज्ञान में भी आ जाएंगे, बट रिमेंबर दिस ईगो जहां पर बढ़ रहा है, दैट इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। यू कैन डू सेवा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्पिरिचुअलिटी, साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, अध्यात्म का उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, थैंक यू।